Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad V. More English High School. Okay, in last lecture, we have completed practice set 5.2. Now, next topic, properties of rectangle, rhombus, and square. Before starting with practice set 5.3, let us see the properties. Okay, rectangle, rhombus, and square are also parallelogram. Okay, मीन्स रेक्टेंगल रोम्बस और स्क्वायर ये जो तीनों ज्योमेट्रिकल शेप्स है तीनों पे क्या है पैरेललोग्राम है. So the properties that opposite sides are equal and opposite angles are equal and the diagonals bisect each other hold good in these types of quadrilateral also. Means ये तीनों की भी common properties क्या है कि इसके opposite angles, opposite sides क्या होगी similar होगी, right? And then उनके जो diagonals है एक दूसरे को bisect करेंगे मतलब equal divide करेंगे. But there are some more properties of this quadrilateral. Means apart from these three properties, there are some more properties. Okay. Proof of these properties are given in brief, considering the steps in the given. Now here, first of all, diagonal of a rectangle are congruent. Okay, first property क्या है कि जो rectangle है, rectangle, rhombus और किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल, रॉम्बस और स्क्वायर, राइट. तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना ये AC BD वो क्या होंगे एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट. द नाउ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इज व्हाट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. मींस वो क्या करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एग्जैक्टली. ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और क्या करते हैं एक दूसरे को एक्जैक्टली इक्वल पार्ट्स में. डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस बाइसेक्ट इट्स अपोजिट एंगल्स. ओके, बस सपोज उसके जो डायगोनल्स होंगे उसके वो क्या होंगे अपोजिट बाइसेक्ट करते हैं मतलब टू इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं. डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट इट अपोजिट एंगल्स और जो स्क्वायर के है उसके भी डायगोनल्स क्या करते हैं उसके बाइसेक्ट करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू यूज ऑल दिस प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट प्रैक्टिस. Diagonals of a rectangle are congruent. Diagonals of a square are congruent. Diagonals of a rhombus are perpendicular bisector to each other. Diagonals of a rhombus bisect the pairs of opposite angles. Diagonals of a square are perpendicular bisectors of each other. Diagonals of a square bisect opposite angles. Okay, now first question. Practice set 5.3. First question. Diagonals of a rectangle ABCD. Now here it's given एक rectangle है ABCD intersect at point उसके diagonals एक दूसरे को एक point पे intersect कर रहे हैं. Okay, if AC is 8 cm. Now first diagonal is given. AC की length कितनी given है 8 cm. Then find the length of BO. आपको AC की length given है आपको BO की length find out करना है. Okay, now if angle CAD is 35 degree find the measure of angle ACB. आपको CAD का measurement given है आपको ACB का measurement क्या करना है find out करना है. Okay. Now let's solve this question. First question. Okay. First of all, we'll write all the given information. Okay. Question number 1. So first of all, we'll draw the diagram according to the given information. क्या given है कि there is a rectangle, right? Rectangle ABCD. Okay. ABCD. Bisect each other at point O. Okay. Now look here. Now here you can see ABCD is a rectangle. AC, BD, these are the two diagonals and they are bisecting each other at point O. Now it's given that AC is equals to 8. क्या given है आपको AC की वैल्यू 8 given है. आपको फाइंड आउट क्या करना है BO की वैल्यू फाइंड करना है. BO वैल्यू फाइंड करना है. अनदर थिंग CAD की वैल्यू गिवन है आपको. CAD is equals to 35 डिग्री और फाइंड क्या करना है आपको एंगल ACB. ओके, नाउ लुक हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेंशन इन द डायग्राम AC की लेंथ मींस ये वाला जो डायगोनल है राइट इसकी लेंथ कितनी है 8. ओके, एंड आपको फाइंड क्या करना है BO. दिस वन यू आर सपोज टू फाइंड. Next CAD. Where is the angle CAD? CAD. Here it's angle CAD. क्या given है 35 डिग्री. आपको फाइंड क्या करना है ACB.
बी, आपको ACB की लेंथ फाइंड करना। ओके, नाउ look here, first of all here you can see since it's given property of the rectangle, right, कि जो diagonals होते हैं वो क्या होते हैं, exactly congruent होते हैं, right, diagonals of the rectangle is congruent. So here if AC is 8, BD is also 8, right, so here we'll write AC is equals to BD is equals to 8, ब्रैकेट में आप रीजन लिखोगे diagonals of rectangle are congruent. Okay, नेक्स्ट नाउ आपको फाइंड आउट क्या करना है, बीओ का मेजरमेंट फाइंड करना है, मींस एग्जैक्टली बीडी का वो क्या रहेगा, हाफ रहेगा, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट, सो बीओ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीडी, राइट, मींस हाफ ऑफ 8, 1/2 इंटू 8, आपको ब्रैकेट में मेंशन करना है सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट, 1/2 इंटू 8, आप ब्रैकेट में लिखोगे सिंस diagonals bisect each other, right, means एक दूसरे को exactly half portion में divide करते हैं, so therefore BO should be half of BD, right, so 1/2 into 8, 2 ones are 2, 2 fours are 8, 4 1 into 4, so 1 into 4 is what, 4, so it means BO का measurement क्या मिला आपको, therefore BO is equals to 4. okay, next आपको क्या गिवन है, हियर इट्स एंगल CAD गिवन है, आपको CAD का मेजरमेंट गिवन है, दैट इज 35 डिग्री, आपको क्या फाइंड करना है, ACB का मेजरमेंट फाइंड करना है. ओके, नाउ यू कैन सी हियर, आपको पता है पैरेललोग्राम की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है जो दिस रेक्टेंगल के ऊपर भी एप्लीकेबल है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, राइट, so here since opposite sides are parallel to each other, AD and BC are parallel to each other, and you can see AC is the transversal, so it means angle DAC and ACB, they both are the alternate angle. You can see they are making the Z angle, right? So it means, you know, alternate angles are similar, right? Alternate angles क्या होंगे, exactly similar होंगे. So therefore ACB का measurement भी क्या मिलेगा आपको, 35 degree. So now let us write the explanation. Since AD is parallel to CB and AC is transversal, AC is transversal, therefore angle CAD is congruent to angle ACB. ओके, ये दोनों भी एंगल्स क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल, आपको ब्रैकेट में मेंशन करना है अल्टरनेट एंगल, व्हाट यू विल राइट हियर, angles. Okay, so since CAD is equals to 35 degree, right, since angle CAD is equals to 35 degree, therefore angle ACB is equals to 35 degree. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया, आपको BO की मेजरमेंट फाइंड करना था, BO इज इक्वल्स टू 4, एंड आपको ACB का मेजरमेंट फाइंड करना था, ACB इज इक्वल्स टू 35 डिग्री एंगल ACB. Now let's solve the second question. Second question. In a rhombus PQRS, if PQ is equals to 7.5, then find the length of QR. Okay, it's given that there is a rhombus PQRS. Okay, अब आपको given है कि PQ की वैल्यू कितनी है, 7.5, आपको QR की लेंथ फाइंड आउट करना है, मीन्स सपोज इट्स अ rhombus. Okay, PQRS, PQ का मेजरमेंट आपको given है, आपको QR का मेजरमेंट फाइंड करना है. ओके, नेक्स्ट, if angle QPS is equals to 75 degree, then find the measures of angle PQR and angle SRQ.
क्या गिवन है आपको यहाँ पे? नेक्स्ट आपको एंगल क्यूपीएस का मेजरमेंट गिवन है 75 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है? एंगल PQR एंड SRQ। ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट रिवाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ओके, रोम्बस में अब देखो क्या गिवन है। सबसे पहले डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मींस जो डायगोनल्स होंगे रोम्बस के वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे एक दूसरे के, एग्जैक्टली एक दूसरे को कट करेंगे इक्वल पोर्शंस में एंड एट 90 डिग्री। ओके, देन next property is what? Diagonals of a rhombus bisect the pairs of opposite angles। जो opposite pairs है diagonals के, क्या है वो? एक दूसरे को क्या करेंगे? एग्जैक्टली इक्वल पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट diagonals of a square। okay, now here it's this property of square। so now rhombus की जो properties है हम लोग वो यूज करेंगे to solve the second question। okay, so first of all we'll write what is given to us। so now what is given us? PQRS रोम्बस है। PQ का मेजरमेंट आपको गिवन है 7.5। आपको QR का मेजरमेंट फाइंड करना है। एंड देन एंगल QPS आपको गिवन है 75 डिग्री। PQR एंड SRQ फाइंड करना है। ओके, PQR एंड SRQ। सो नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम। PQ, ओके, देन एंगल QPS आपको गिवन है QPS। हियर इट्स QPS का मेजरमेंट क्या गिवन है आपको? 75 डिग्री, राइट। देन PQ का मेजरमेंट आपको गिवन है दैट इज 7.5। PQ का मेजरमेंट क्या है? 7.5। आपको फाइंड क्या करना है? QR फाइंड करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हियर विल राइट व्हाट इज गिवन टू अस। ओके, आपको गिवन है एंगल QPS इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, राइट। देन मेजरमेंट ऑफ PQ इज 7 पॉइंट। फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड QR। आपको QR की वैल्यू फाइंड करना है। देन आपको एंगल PQR फाइंड करना है एंड एंगल SRQ फाइंड करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, PQ इज गिवन टू यू। हियर इट्स PQ दैट इज 7.5, राइट। PQ का मेजरमेंट आपको गिवन है 7.5। आपको फाइंड आउट क्या करना है? QR का मेजरमेंट फाइंड करना है, राइट। देन नेक्स्ट एंगल QPS, हियर इट्स राइट। एंगल QPS आपको 75 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है? एंगल PQR, हियर इट्स PQR आपको फाइंड करना है एंड एंगल SRQ फाइंड करना है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस के जितने भी अपोजिट जैसे स्क्वायर में सारी साइड सेम होती है, वैसे रोम्बस में भी क्या होती है? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, राइट। सो देयरफॉर यू राइट हियर PQ and QR will be similar। PQ is equals to QR। Why so? Because you know the property, all sides of rhombus are equal। okay, now since PQ is equals to 7.5, since PQ is equals to 7.5, therefore QR is equals to 7.5। got it? then next आपको क्या गिवन है? आपको एंगल QPS का मेजरमेंट गिवन है, दैट इज एंगल QPS इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। QPS का मेजरमेंट कितना है? 75 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR, राइट। हियर इट्स PQR। आपको PQR का मेजरमेंट फाइंड करना है। देन आपको SRQ का मेजरमेंट, हियर इट्स SRQ, इसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर, आपको पता है पैरेललोग्राम की जो तीन प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। रोम्बस की अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। नाउ यू नो PQ SR ये क्या है? पैरेलल लाइंस, राइट। नाउ हियर एंड
PS and QR, these are the parallel lines. So PS and QR is parallel and PQ is transversal. And here you can see this angle P and Q are the interior angles formed on the parallel line, right? So therefore you will use the interior angle property here to find out the measurement of angle PQR, right? So now, since PS is parallel to QR and PQ is transversal, therefore angle QP therefore angle QPS is equals to angle QPS plus angle PQR is equals to 180 degree, right? In bracket you have to mention interior angle are supplementary, right? In bracket you have to write interior angles are supplementary. Now you know the value of angle QPS. Angle QPS is 75 degree. Now keep it as it is. Angle PQR आपको find करना है, so आप as it is रखो is equals to 180 degree. Now angle PQR is equals to 180 degree minus 75 degree. So now subtract 180 में से आप 180 में से आप 75 subtract करोगे, so you will get 105 degrees. So therefore angle PQR is equals to 105 degree. सेकेंड हो गया. देन थर्ड पार्ट क्या था, आपको एंगल SRQ भी फाइंड करना है. वेयर इट इज हियर angle SRQ and you know angle SRQ is the exactly opposite angle, right? SPQ का क्या है, अपोजिट एंगल है. एंड यू नो द प्रॉपर्टी के अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे. सो यू विल राइट एंगल SRQ इज इक्वल्स टू एंगल QPS. ब्रैकेट में आपको मेंशन करना है अपोजिट एंगल्स, राइट? Opposite angles. Now since QPS is of 75 degree, right? Since angle QPS is equals to 75 degree, therefore angle SRQ is equals to 75 degree. Got it? So here second question is completed. Okay, next. Next question, question number 3. Diagonals of a square IJKL intersect at point M. Now here it's given there is a square IJKL. Okay, उसके diagonals क्या करे, एक दूसरे को intersect करे point M पे. Find the measures of angle IMJ, JIK and LJK. आपको find क्या करना है, IMJ, JIK and LJK, ये तीनों भी angle का measurement find करना है. Okay, so now let us first revise the properties of square. Okay, मेरी अम्मी सेम मेरी अम्मी जैसे, मेरे बैग में 10 रुपए भी रहते हैं, मम्मी वो निकाल लेते और पता नहीं कब. नहीं कोई इंसान मेरा बाप बेटा है, उसको तुम्हें छोड़ूंगी. क्यों रो रही है, अरे क्यों रो रही है? Okay, now diagonals of a square are perpendicular bisector of each other, right? मतलब स्क्वायर के जो diagonals होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के perpendicular bisector of each other, नहीं? Diagonals of a square bisect opposite angles. जो diagonals होते हैं स्क्वायर के वो क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स को क्या करेंगे, एक्जैक्टली बाइसेक्ट करेंगे. ओके, मीन्स एक्जैक्टली इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर. नेक्स्ट आपको गिवन है कि IJKL स्क्वायर है, उसके जो डायगोनल्स है वो पॉइंट M पे इंटरसेक्ट करते हैं. ओके, आपको 3 एंगल है गिवन, उसका आपको क्या करना है, मेजरमेंट फाइंड करना है.
आई जे के एल, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्क्वायर। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल आई एम जे का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है ना, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम। ओके, नाउ आई एम जे, इसका मेजरमेंट फाइंड करना है, राइट। देन जे आई के, हियर इट्स जे आई के, इसका मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करना है। देन एल जे के, एल जे के, इसका मेजरमेंट भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नाउ यू नो द प्रॉपर्टी, राइट। आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है कि जो चारों भी एंगल होते हैं, ऑल द फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट जो करना है फर्स्ट एंगल, क्या है वो, एंगल आई एम जे, राइट, एंगल आई एम जे। Now here it's IMJ, and you know the property, the diagonals of square are perpendicular bisector of each other, means they are intersecting at 90 degree, right. So here you will write angle IMJ, measurement of angle IMJ is equals to 90 degree, and in bracket you will write diagonals of square are perpendicular bisector, right. Perpendicular means making of 90 degree, right, bisector. Got it. Next, okay, next आपको फाइंड आउट क्या करना है, नेक्स्ट एंगल जे आई के, वेर इट इज, हियर इट्स जे आई के। नाउ आपको पता है कि जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, राइट, और जो डायगोनल्स है वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को, तो हियर इट विल बी हाफ ऑफ 90 डिग्री, राइट। सो नाउ लेट अस राइट इट हियर, एंगल जे आई एल is equals to 90 degree, JIL क्या है, 90 डिग्री है, and we have to find JIK, right. So measurement of angle JIK is equals to half of JIL, okay। अब ये क्या रहेगा, हाफ ऑफ JIL, आपको क्या करना है, मेंशन करना है ब्रैकेट में, रीजन डायगोनल्स बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, okay, diagonals bisect the opposite angle. So here it is of half of 90 degree, means half of 90 is what, 45 degree, right. So JIK का measurement क्या मिला आपको, 45 degree. Similarly, you have to find the measurement of angle LJK. Same process you will follow. LJK का measurement भी क्या रहेगा, okay. Next, LJK का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है, राइट। सो LJK भी क्या रहेगा, एग्जैक्टली हाफ रहेगा। सो एंगल LJK is equals to half of angle IJK, right. So it means it is a half of 90 degree is equals to 45 degree, okay. So question number 4 completed.